Hello dear students, welcome to the class today. How are you all doing? Yes, hope you all are doing fine. Children, today's video, one thing that I definitely wanted to inform you, we are starting the last chapter, children, the last chapter in geography. Got it? The 10th chapter, the 9th chapter in geography, which happens to be your last chapter in this session for geography only. इस चैप्टर को खत्म करने के बाद हमारा सिलेबस ओवर हो जाएगा चिल्ड्रन. देन वी विल बी स्टार्टिंग आवर रिविजन वर्क फॉर योर एनुअल एग्जामिनेशंस. प्लीज रिमेंबर एनुअल एग्जामिनेशंस very important, where you will be promoted to the next class. So I find some of the very brilliant students in this class 7. I'm very proud of these students who are doing very well. They watch the videos. They are very regular in attending the classes, submitting the copies. I thank these students who are so aware and so well managing their work. Got it, children? Now, ये चैप्टर शुरू करेंगे जिसमें वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइफ इन डेजर्ट्स. कभी रेगिस्तान में रहे हैं? यस, वी हैव गॉट डेजर्ट इन द एरिया इन वेस्टर्न इंडिया. वेस्टर्न इंडिया में, ठीक है, इंडिया का मैप बनाते हैं. Got it? So this happens to be Rajasthan, जहां पे की बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है. It's very hot there. Okay, अभी तो नहीं ऐसा, अभी तो the climate is very, लेकिन desert area में what happens that the desert gets very heated in the daytime. सन रेज जब बालू के ऊपर गर्मी पड़ती है ना, तो बालू बहुत ज्यादा हीट अप हो जाता है. Because of that heat, what happens, the people who are living nearby, जो आसपास के लोग रहते हैं ना, they witness lot of heat, summers. और जितनी तेजी से the desert gets, मतलब रेगिस्तान, बालू जितनी तेजी से गर्म होता है, उतनी ही तेजी से वो ठंडा भी होता है. It gets cooled also very fast. So what I wanted to talk about, जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रही थी, कि extreme heat, extreme cool is giving a very different kind of a climate structure. कहाँ पे? In the desert. Desert region में एक अलग तरीके का ही climate बन रहा है. Okay? तो हमने इसको कहाँ पे पढ़ा था? First, where we have talked about desert was in chapter 5. अगर आपको याद हो, एक बार देख लेना. Once go through chapter 5 also. जहां पे पानी नहीं है, इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि यू कैन लिव एनीवेयर. लाइट नहीं रहेगी तो भी रह लोगे, लेकिन पानी के बिना इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत दिक्कत है. तो घास भी नहीं है. यू हैव गॉट जैसे गाय, भेड़, बकरी, इनको भी तो खाना चाहिए ना. सो फूड इज नॉट अवेलेबल, एब्सोल्युटली मिसिंग. ऐसी जगह पे आप कैसे रहेंगे? How will a person survive in such a place where there is no grass for the cattle to feed and where there is no water? अगर आप, if somebody is involved in agriculture, खेती कर रहे हैं, तो खेती करने के लिए भी for that kind of agriculture also there is no environment, there is no water. How will the people survive? That is what we will be talking in this chapter. इस chapter में हम यही पढ़ेंगे कि we have learned, हमने पीछे chapter में क्या पढ़ा? We read about Amazon forest. 60% of world oxygen is coming from there. बहुत बचा के रखना है Amazon forest को. अभी 2 days पहले I saw in the news, पता नहीं, I would like you also to search that
Yes, 2 days back only it was there in the news that Amazon forest is finishing. Amazon forest जो है वो खत्म हो रहा है and खत्म हो रहा means in the coming 50 to 60 years it will finish. क्यों? अरे पर पॉल्यूशन है, पॉपुलेशन है, वाटर ओवर यूजिंग है, lot of these things are there which will somehow harm the Amazon forest. Now we are talking about desert कि people are living in these kind of desert. इस तरह की जगह पे आप और हम रह सकते हैं क्या? No, I can't live. मैं तो बिल्कुल नहीं रह सकती. Without water, without greenery and extreme heat, oh my God. Harsh temperatures are there. And some places though, the temperature is as hot as fire. बिल्कुल आग की तरीके की गर्मी है. And some places it is as cold as ice. कितना difference है ना? There is so much of differentiation in the temperature conditions. Okay. So, these are the desert areas of the world. क्या पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में? How people cope. Cope means adjust करते हैं with extreme harsh मतलब बहुत ही तीखा, harsh temperatures okay, harsh temperatures. In some places it is इतनी गर्मी होती है कि बिल्कुल लगता है आग है. It is hot as fire. Okay. And some places it is cold as ice. And some places it is cold as ice. So imagine the living conditions of the people who are staying in these areas. यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो कैसे रहते होंगे? The desert areas of the world, these are the desert areas of the world. So these are desert areas of the world. पूरी दुनिया के जो है ना, ये जो the environment that is there, इसको हिंदी में what we call is रेगिस्तान. ये जो रेगिस्तान का एरिया है, लोग यहाँ कैसे रहते होंगे? How are the people surviving in these areas? Got it? A thing to ponder on. कोई चीज जिसके ऊपर सोचना चाहिए हमको. इसके अलावा क्या है? There is very low rainfall. बारिश बिल्कुल नहीं होती है. It's desert area. ठीक है. एग्रीकल्चर है नहीं. Because water cycle cannot be there. नीचे पूरा सूखा हुआ है तो ऊपर में वेपर बन के कैसे जाएगा? So what happens is कि there is very low rainfall. Okay. Very scanty vegetation. मतलब कि सब्जी उब्जी ग्रो करने का कोई उपाय नहीं है. Scanty vegetation. Okay. And extreme temperatures. 50 degree, 55 degree. Oh my God. And extreme temperatures. अब आप सोचो यहाँ पे कोई कैसे रहेगा? How will the people survive in such conditions? Really tough. And depending on the temperature, there can be hot desert also and cold desert also. Yes, children. हाँ, वहां पे जैसे कि the places that we are talking about, जगह बहुत गर्मी पड़ती, कहीं बहुत ठंडी भी पड़ती है. People inhabit, लेकिन लोग यहाँ रहते हैं. Very little water is there. We should know. ठीक है.
कि ऐसी जगह पे लोग कैसे रहते होंगे। सोचने वाली बात है ना। हाउ डू पीपल survive in such conditions? कैसे जिंदा रहेंगे? Got it? Very difficult, really tough. And पहले क्योंकि दो तरीके के there are two types of desert. Hot desert and cold desert. What I was thinking कि मेरे को जो पता है, what I know, as much as I know, hot desert is there. कि रेगिस्तान होता है एंड बहुत गर्मी होती है, इसके बारे में तो मुझे पता है, लेकिन व्हाट इज कोल्ड डेजर्ट? हाँ, ये आई एम गिविंग यू एज होमवर्क. यस, प्लीज फाइंड आउट एंड डिस्कस इट विथ मी इन द क्लास that what actually is a cold desert. What is the concept of cold desert? Got it? तो पहले हम किस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे? फर्स्ट व्हाट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द हॉट डेजर्ट. गॉट इट? हाँ, पहले गर्म वाला है ना, क्योंकि एवरीबडी, मोस्ट ऑफ द पीपल नो कि अगर रेगिस्तान है तो गर्मी ही होगी. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड cool climate and cool environment in the desert area. So if it is desert, it is hot. तो पहला हम जो first topic that we are discussing is the hot desert. कहां पे है? It is in Sahara. कहां पे है? It is in Africa. Yeah. वर्ल्ड मैप देखना है, वर्ल्ड मैप देखेंगे एंड अफ्रीका कहां पे है, वहां पे हमको सहारा लोकेट करना है. पूरा नॉर्थ अफ्रीका, मोस्ट ऑफ द नॉर्थ अफ्रीका इज द डेजर्ट. कितना बड़ा कॉन्टिनेंट है ना, इट्स सच अ बिग कॉन्टिनेंट एंड हाफ ऑफ द प्लेस इज कवर्ड विथ डेजर्ट. हाँ, आधा कॉन्टिनेंट जो है किस चीज से कवर्ड है? रेगिस्तान है. ओके, इट इज पहला, दिस इज जीके. आई थिंक यू ऑल नो अबाउट इट. हाँ, यू ऑल आर स्मार्ट है ना, यू माइट बी नोइंग. वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट. और भी जगह है, लेकिन सबसे बड़ा वाला जो है वो अफ्रीका में है. कितना है इसका एरिया? एरिया इसका समझो पहले. आई टोल्ड यू दिस इज नॉट ज्योग्राफी, दिस इज जीके. ठीक है? इट हैज एन एरिया ऑफ 8.54 million, 8.54 million स्क्वायर किलोमीटर. कितना बड़ा एरिया है. इंडिया कितना है? इंडिया इज ओनली 3.2 million स्क्वायर किलोमीटर. पूरा इंडिया, आई मीन द कंट्री, इंडिया का एरिया इज 3.2 million स्क्वायर किलोमीटर में पूरी कंट्री है. एंड 8.54 million स्क्वायर किलोमीटर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इज कवर्ड विद डेजर्ट. और ये डेजर्ट एरिया जो है, इसमें ही बहुत सारी कंट्रीज हैं. मेनी कंट्रीज. अफ्रीका इज अ कॉन्टिनेंट ना, हम कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, हम कंट्री की. अफ्रीका इज नॉट अ कंट्री, अफ्रीका इज अ कॉन्टिनेंट. सो मेनी कंट्रीज आर देयर. मेनी कंट्रीज situated in this area
इज, कौन कौन सी कंट्रीज है. अब दिस इज अगेन जीके. कभी पूछ लिया जाए तो करोड़पति में पूछ लेते हैं कि अफ्रीका की कौन कौन सी कंट्रीज हैं जहां पे की डेजर्ट है या डेजर्ट एरिया में ही सिचुएटेड है. पहला है अल्जीरिया. ये आई लास्ट यू इन द क्लास ऑल्सो. चैड, इजिप्ट, गॉट इट, लीबिया, माली. कंट्री का नाम है चिल्ड्रन. मॉरिटानिया, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजर. अब जैसे क्वेश्चन आपको जीके का कैसा क्वेश्चन आएगा. Sudan is situated in desert area. True, false. And do you really which country? Niger and Sudan do not belong to a desert country. Are not desert countries. True or false? Got it? इसलिए आपको इन सारी जगहों का नाम याद रखना है. Sudan, ट्यूनीसिया एंड खाली अफ्रीका में नहीं है. सम ऑफ इट्स पार्ट्स आर सिचुएटेड इन एशिया ऑल्सो. वेस्टर्न एशिया. ओके, ऑल दीज प्लेसेस. अब जब आप डेजर्ट एरिया के बारे में सोचते हो, व्हेन यू थिंक ऑफ अ डेजर्ट, द पिक्चर इमीडिएटली किस तरह का पिक्चर आपके दिमाग में आएगा कि पूरा जगह बालू है. इट इज ऑल सैंड सैंड. लेकिन खाली सैंड नहीं होता है यहां पे. अपार्ट फ्रॉम सैंड, सहारा डेजर्ट, वहां पे एक प्लेन एरिया है ही नहीं. प्लेट्यूज आर देयर, छोटे छोटे पहाड़ हैं. एलिवेटेड स्ट्रक्चर्स आर देयर. थोड़ा सा अगर स्ट्रक्चर इज एलिवेटेड, एलिवेटेड मीन्स उठा हुआ, ऊंचा, ऊंची जगह है एंड पूरा रॉकी है. आई मीन पत्थरों से भरा हुआ है. तो इट इज ऑल डेजर्ट. उसको भी हम डेजर्ट ही कहेंगे. कोई जरूरी नहीं है कि डेजर्ट का मतलब खाली बालू 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 सब तरफ नजर आए. नो, इट्स नॉट दैट. इट इज अ प्लेट्यू रीजन ऑल्सो which is situated on an elevated platform. थोड़ा सा उठा हुआ है और ऐसी जगह पे the people who are living and their lives, we have to talk about it. So the rocky surface that is there, it may be 2,500 meters height. Okay, there is not only sand everywhere. हर जगह खाली बालू बालू नहीं है. Okay, it is covered with plains. It is covered with gravel plains and rocky surface. Got it? पत्थर पत्थर है, पूरा चारों तरफ पत्थर है, सैंड है, हार्ड स्ट्रक्चर है. तो आप सोचो, इट इज सो डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन सच अ सिचुएशन. हमको मैप पे लोकेट करना पड़ेगा कि विच आर द प्लेसेस जहां पे कि इस तरह का एनवायरनमेंट है. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड. सबसे पहले जो हमको देखना है वो है द डेजर्ट एरिया. डेजर्ट एरिया को देखते हैं कहां पे ये कंट्रीज है, बिकॉज दिस इज ऑल जीके डियर स्टूडेंट्स. ठीक है, तो ये मैं आपको बुक में ही दिखाऊंगी. मैप मेरे पास एक्चुअली अफ्रीका का मैप नहीं है, so I'll be showing it to you in the book only, and there only we will be discussing ki which part is
completely covered with desert. Got it? Desert area कौन कौन सा है ये हम सारा चलो देखते हैं बुक में. Dear students, we have started this chapter today, Life in the Desert, Geography, last chapter, some very important points we have, and I told you that I'll be showing the map also to you. Definitely I'll be showing the map to you, dear students, but before that, certain points that we have done, ठीक है, इसमें we have to understand the characteristics of the desert. I'm sorry. इसको ना, this is a thick one. So, when we are talking about the characteristics of desert, तो हमको desert areas of the world we need to understand. इसमें क्या है कि suppose a question is asked that what are the major characteristics of the desert area, तो आप क्या लिखोगे? What will you mention? You have to mention about the desert area is characterized by low rainfall, scanty vegetation. What do you mean by scanty? Very less. Okay? And extreme temperatures. सबसे ज़्यादा गर्मी, सबसे ज़्यादा ठंडी. ठीक है? That is the major characteristics. Temperature, यहाँ पे हॉट डेजर्ट हो सकता है, कोल्ड डेजर्ट भी होता है. कोल्ड डेजर्ट के बारे में यू विल बी डिस्कसिंग इट विथ मी इन द नेक्स्ट क्लास. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू डिस्कस चिल्ड्रन इज द डेजर्ट का एक्सप्लेनेशन. व्हाट एक्चुअली इज अ डेजर्ट? सो it is a small region, it is an arid region which has got extremely high or extremely low temperature. ठीक है, बहुत ही हाई टेम्परेचर या बहुत ही लो टेम्परेचर होता है. एंड द बिगेस्ट थिंग दैट वी फाइंड इन द डेजर्ट एरिया इज दैट देयर इज नो वेजिटेशन. आई वॉज थिंकिंग एंड आई वॉज इमेजिनिंग कि हाउ कैन पीपल सर्वाइव इन अ प्लेस जहाँ हरियाली नहीं है, जहाँ हरा भरा नहीं है, जहाँ एग्रीकल्चर नहीं है. लेकिन इमेजिन चिल्ड्रन, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि लोग रह रहे हैं. सच प्लेसेस पीपल आर स्टेइंग, इजंट इट? तो दैट इज देयर. इस चीज़ को हमको समझना है. वी नीड टू अंडरस्टैंड इट. देन हमने सहारा के बारे में बात किया. अभी वी विल बी सीइंग, आई टोल्ड यू दैट आई विल बी शोइंग यू द मैप ऑफ द वर्ल्ड. एक चीज़ और कि डेजर्ट एरिया दैट वी आर टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रन, देयर वी आर हैविंग वेरी लिटिल वाटर. लिटिल वाटर, यू वोंट बिलीव चिल्ड्रन, जिन कंट्रीज़ के बारे में अभी हमने बात की, द कंट्रीज़ दैट आई हैड पॉइंटेड आउट, all those countries have hardly got any water to drink. मुश्किल से पीने का पानी है. Okay, so you can very well understand कि सर्वाइवल के लिए what kind of problems people might be facing. एक दिन पानी नहीं आता है, हालत कितनी खराब हो जाती है. Okay, so largest desert 8.54 million square kilometer. This is GK. I told you children कि इंडिया जितना बड़ा है, इंडिया से 2 गुना ज़्यादा बड़ा, 2 गुना नहीं 3 गुना ज़्यादा बड़ा. यू नो 3 3 जा 9. हाँ, 3 times bigger is desert area. कैसे लोग सर्वाइव करते होंगे? इंडिया में 1-2 जगह ही खाली पानी की किल्लत होती है. ओनली 2-3 places are there where water scarcity is there, and you can see the kind of problems people face. There is lot of rocky surface. ठीक है, पथरीली ज़मीन है. Maybe 2500 meters high at some places. कुछ जगह पे it is more than 2500 meters high.
अब यहां पर देखो, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट इज गिवन, अमेजिंग फैक्ट। क्या है कि आज जो सहारा डेजर्ट, yes, where we have Sahara Desert, once upon a time, can you believe it? Once upon a time, वहां पूरा हरा भरा जंगल था। इतना बड़ा जंगल, लश ग्रीन प्लेन। ओके, कैसे पता चलता है हमको? हाउ डू वी कम टू नो अबाउट इट? बिकॉज ऑफ द केव पेंटिंग्स। वहां पे ना कुछ गुफाएं हैं, देयर आर सम केव्स देयर। उन गुफाओं में, केव पेंटिंग्स में हमको सहारा डेजर्ट में देखते हैं कि देयर वेयर रिवर्स, एंड रिवर्स में देयर वेयर क्रोकोडाइल्स। डू वी फाइंड क्रोकोडाइल्स इन डेजर्ट एरिया? नो, वी डू नॉट। हमको क्रोकोडाइल्स डेजर्ट एरिया में नहीं मिल सकते हैं। इट इज ऑलवेज फाउंड इन रिवर्स एरिया ओनली। केव पेंटिंग्स में वी आर सीइंग दैट पीपल हैव पेंटेड, पीपल हैव शोन, दोज पीपल हु हैव मेड दोज पेंटिंग्स। जिन्होंने वो पेंटिंग बनाई है, उन पेंटिंग्स में ये दिखाया गया है। ठीक है, एलिफेंट वॉज देयर, लायन वॉज देयर, जिराफ वॉज देयर, ऑस्ट्रिच, शीप, कैटल, गोट। व्हाट? इमेजिन, क्या सच में ये जानवर वहां पे थे सहारा में कभी? बट देन, दैट्स व्हाई वी ऑलवेज से ना, सेव एनवायरनमेंट, सेव वाटर, सेव वाटर। These kind of slogans that are given, इस तरह के जो हम नारे लगाते हैं, ये सिर्फ इसलिए to create awareness amongst you. All the children should be aware about the surroundings and they should know what is to be done and how to preserve the environment. तभी हम बचे रहेंगे, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्या हम ऐसा चाहते हैं? नो, हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते हैं। गॉट इट चिल्ड्रन? तो यही चीज़ है कि क्लाइमेट चेंज के वजह से कहीं जहाँ हरियाली थी, आज वहाँ पे डेजर्ट है। वेरी अलार्मिंग। अब अफ्रीका, दिस इज द कॉन्टिनेंट। ऑल द प्लेसेस दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट, जितनी भी जगह बात की, दिस इज मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, मॉरिटानिया, माली, नाइजर, चैड, सूडान, एरित्रिया। अब मेरा पता है सबसे बड़ा क्वेश्चन आपसे क्या है, वेयर आई विल बी एंडिंग दिस वीडियो। आई एम एंडिंग दिस वीडियो विथ अ बिग क्वेश्चन, वेयर डू वी फाइंड, ध्यान से सुनना, where do we find river Nile? ठीक है, where do we find river Nile? नील नदी हमको कहाँ मिलती है? I am ending this with this question only, children. Please try to find out कि ये where do we find Nile river, and आपको वो एरिया बताना है जहाँ पे कि नाइल रिवर इज फ्लोइंग, रिवर नाइल। गॉट इट? तो जब आप रिवर नाइल के बारे में हमको बताएंगे, when you will be telling me about river Nile, then only I'll be telling you कि why did I talk about it. Got it? चलो, so today we are stopping here, children. Next class में we'll be continuing lot of things about the desert life, Sahara desert, some of the most beautiful places. एक तरफ तो इतनी वो है, and some of the most beautiful places in the world is in this area, South Africa. Yes. Another question I am again giving you. Find out some very important tourist places in South Africa. Yes. डियर स्टूडेंट्स, साउथ अफ्रीका के कुछ टूरिस्ट स्पॉट्स के बारे में आप हमको बताएंगे. 2 होमवर्क्स आर देयर. 1 रिवर नाइल
and another is the places, important places in South Africa from a traveling point of view, beautiful point of view. South Africa के कुछ major places. Got it? Okay, thank you so much and all the best to you, dear students.